अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. فقال اللہ تبارک وتعالی: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ لِيَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر و واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 یعنی 43 اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے. عرب اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کوئی اچھا کام اس مہینے میں نہیں کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا سفر ولا طیارہ ولا ہام. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. ایک بوم پرندہ تھا، سفر سے پہلے اگر نکل گیا اور کسی نے دیکھ لیا تو وہ سفر کو موقوف کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے. نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی، لیکن کسی چیز میں نحوست نہیں اور ان تین چیزوں میں بھی نہیں. اس مبارک مہینے میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد اور اپنی عمر شریف کے 53ویں برس میں الوداع کہہ کر کے ہجرت کی تھی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے. ان دو آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ ہجرت کے سفر کے حالات بیان کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال
इंतहाई महबूबियत के मक्के मुकर्रमा में आपने गुजारे, जिसमें आपको अल अमीन और अस्तादिक के लक़ब से लोग याद करते थे। हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से कम लोग जानते थे, अमीन और सादिक के लक़ब ही से आप याद किए जाते थे। अपनी उम्र शरीफ के 40 साल 6 महीने पर आपने ऐलान नबूवत फरमाया। अब 13 साल आपका मक्की दौर रहा, जिसमें इंतहाई मजालिम आप पर ढाए गए, आपके सहाबाए किराम पर, जिनमें बिलखुसूस हजरत खब्बाब, हजरत बिलाल, हजरत सोहेब, हजरत सलमान, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया, हजरत जन्नीरा, इनके जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है। बहुत मजालिम ढाए गए, आग में डाले गए, इंतहाई खतरनाक अंगारों में सुलाए गए और सीनों पर भारी पत्थर की चट्टानें रखी गई, जंजीरों में जकड़े गए, हालात दर हालात दर हालात। आप के दामाद और बेटी ने मक्का से हबशा की हिजरत की और सहाबा ने भी मक्का से हबशा की हिजरत की। फिर हबशा से वापस मदीने की तरफ हिजरतें हुई। 13 साल का ये जो दौर है, जिसको मक्की दौर कहा जाता है, आका की नबूवत वाली जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है। ऐलान नबूवत से पहले तो 40 साल मक्के के, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है, एक मक्की दौर और एक मदनी दौर। इसलिए कुरान भी जितना उतरा वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 114 सूरतों में से 27 सूरतें और 87 सूरतें, 87 सूरतें मक्की हैं और 27 सूरतें मदनी हैं। यानी ये 13 साल का जमाना और वह 10 साल का जमाना। यहां सब्र किया, इस्तिकामत हुई और दुआ हुई। कामयाबी के 3 बुनियादी नुक्ते हैं, एक सब्र और एक इस्तिकामत और एक अल्लाह से मांगना। पहले नंबर में इस्तिकामत। आपको दीन दिया गया, 365 बूत खाना काबा में रखे हुए और पूरी हिजाज की सरजमीन पर कुफ्र और शिर्क ने सिक्का जमाया था और उनके कुलूब में शिर्क, कुफ्र, बुतपरस्ती रासिक हो चुकी थी। वो जुहलाए अरब थे, जिन पर हुकूमत करने के लिए कोई तैयार नहीं। शराब इनकी गुट्ठी में पड़ी थी, कैमारबाजी में वो बहुत मशहूर थे। इंतहाई फक्र फाका की जिंदगी गुजारते थे, बहुत मजलूमियत की जिंदगी। सगी बेटी को जमीन में जिंदा दफन करने वाली कौम, ये दिलों की सख्ती का हाल था। मौजूदा हालात पर जरा मक्के को देखें। सगी पेट की बेटी को जो बाप जमीन में जिंदा दफनाता हो, वो दिल की सख्ती थी। कैमारबाजियों में नस्ल बर्बाद होती थी। लड़ाई कौम में बहुत आम। पहले ऊंट ने पानी पी लिया, दूसरे का नंबर था, इसको धक्का देकर दूसरे ने पहले पिला दिया। 100 बरस या 150 बरस लड़ाई बंद नहीं होती थी इतनी मामूली हरकत पर। वो कौम मेहंदियों में खेलने वाली थी। सट्टा और जुआ इनकी तकदीर बन चुकी थी। इन हालात में फालान की चोटियों से आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तुलू होता है। और इसी कौम में जो इंतहाई मजलूमियत की जिंदगी गुजार रही है,
اور جس قوم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سماج، سوسائٹی، معاشرے میں جن کی کوئی وقاحت نہیں، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے۔ اس میں نبیوں کا نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرچم نبوت لہلایا، محنت کی مکے میں 1 سال 2 سال 10 پورے ہوئے، اوپر 3 پورے ہوئے۔ اب پیغمبر پر مکی کی زمین تنگ ہو رہی تھی، ضاقت علی الارض بما رحبت والا معاملہ تھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، تکلیفیں دیے جاتے تھے، لیکن بہت قدرت کا عجیب کرشمہ نمایاں ہوا۔ جتنا اسلام کو دبایا جاتا تھا اتنا ابھرتا تھا، جتنا ظلم کیا جاتا تھا اتنا طاقتور بنتا تھا۔ آقا کی مقبولیت اور محبوبیت کو مکہ کے مشرک، سرداران قریش، ٹھیکیدار برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتا ہے، جتنا مارا جاتا ہے اتنا کھلتا ہے، ان کے متبعین کی تعداد روز بڑھتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، حارث ابن النضر، نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط، بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہوئے مکہ مکرمہ میں، حرم میں، دار الندوہ میں۔ ایک جگہ ہے جس کا نام میٹنگ ہال رکھا، عربی کا لفظ دار الندوہ ہے، دار کا معنی گھر اور ندوہ کا معنی مجلس، میٹنگ ہال حرم ہی میں۔ آج بھی وہ جگہ الندوہ کے نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ جمع ہوئی اور بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا تھا؟ دیکھو ذرا اللہ کی قدرت، مکہ میں، حرم میں، دار الندوہ میں بیٹھ کر مجلس قائم کر رہے، مسجد بنانے کی، مدرسہ بنانے کی، قومی جہت یکجہتی کی نہیں۔ مشورہ کیا ہوا کہ محمد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کیسے روکا جائے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کو کیسے گھٹایا جائے، اور جتنا ان کو دباتے ہیں اتنا ابھرتا ہے، اور اس کی مقبولیت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بڑی میٹنگ طلب کی۔ اتفاق سے اس میٹنگ کے اندر ابلیس، شیطان بھی ایک مشرک کی صورت بنا کر میٹنگ میں آیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیاطین ایسی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، اور جہاں اس قسم کی مجلسیں قائم ہوتی ہے وہاں شیطان بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس کے ساتھ ابلیس بھی آیا۔ سب نے آپس میں مل کر کے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ان کا پھیلتا ہوا مذہب، اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جائے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ لوہے کی زنجیر لائی جائے اور اس میں محمد کو باندھ دیا جائے اور تالا مار کر کے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ ایک تجویز، ایک رائے، ایک مشورہ یہ آیا، لوکھن کی سانکڑوں میں باندھ کر کے ایک کمرے میں ڈال دو۔ دوسرے نے کہا ان کو جلا وطن کر دو، مکے سے باہر کر دو۔ دو رائے، دو مشورے آ گئے، تیسرا مشورہ آیا۔ ابو جہل نے کہا میں اپنا مشورہ دیتا ہوں، تو سب ایک دم چوک گئے اور ایک دم مستعد ہو گئے۔ ابو جہل کیا مشورہ دیتا ہے؟ اس امت کا فرعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم فرعون وفرعون امتی ابو جہل بن ہشام۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے، لکل قوم فرعون،
कोई कौम फिरौन से खाली नहीं। फिरौन नाम नहीं है, फिरौन लकब है। मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन लकब दिया जाता। इराक का जो भी बादशाह बनता उसका लकब नमरूद था। रोम का जो बादशाह बनता उसका लकब कैसर था। फारस का जो बादशाह बनता उसका लकब किसरा था। ये नाम नहीं है, अलकाब है, ये इनके ओहदे हैं। जैसे पोप, पादरी, रहबान, तो इस किस्म के ये ओहदे हैं। मिस्र का जो भी ताजपोशी जिसकी की जावे इसको फिरौन कहा जाता है। और आका ने फरमाया हर उम्मत के फराइन हुए हैं फिरौन। फराइन फिरौन का बहुवचन है। और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल इब्न हिशाम है। और जमाना जाहिलियत में इस्लाम से पहले इनको अबुल हिकम कहते थे। हिकमतों का बाप था ये। अल्लाह ने अक्ल दी थी, सलाहियत दी थी, लेकिन गलत इस्तेमाल हुई। अक्ल और सलाहियत अगर सही इस्तेमाल हो तो उससे खैर वजूद में आती है। इसलिए अल्लाह की दी हुई सलाहियतें अगर अल्लाह के हुक्म पर लगती है तो उससे इंसान और कायनात सुकून पाती है। और यही सलाहियत अगर गलत इस्तेमाल होती है तो दुनिया में इससे बुराइयां वजूद में आती है। इसलिए हर सलाहियत वाले को अपनी सलाहियत दीन के कायम करने में, अमन सलामती के फैलाने में इस्लाम की आबियारी और आबपाशी के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। चाहे वो दौलत हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो दबदबा हो, चाहे वो अक्ल फिरासत हो, चाहे हाथ पैर की कुव्वत और ताकत हो। ये अल्लाह की है, किसी की नहीं है। इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करें, ये अल्लाह ने आर्जी तौर पर दी है। और अल्लाह हमें देखना चाहते हैं कि ये इस्तेमाल कैसा करता है। अगर सही इस्तेमाल करता है तो कायनात में खैर वजूद में आती है। और अगर शर बुरी तौर पर इस्तेमाल करता है तो कायनात में भलाई के बजाय बुराई वजूद में आती है। अबू जहल ने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? कि मोहम्मद को अल-याज़ुबिल्लाह कत्ल कर दो। और तदबीर बताई। जितने सरदारान कुरैश है और जितने कबाइल अरब है, ये कबाइली जंगें चलती थी। हर कबीला अलग, तो कबाइल थे और हर कबीले का एक एक सरदार था। कबाइली जंगें भी अरबों में बहुत चली है। हर कबीले से एक सरदार मुंतखब करे और सारे सरदार जब तय हो जाए और सारे सरदार जब मुख्तलिफ कबाइल के जमा हो जाए तो सब मिलकर नबी आखिर ज़मा ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत अबू जहल ने फैसला दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। और कत्ल की तदबीर ये है, सारे सरदारान कुरैश और कबाइल के जितने भी सरदार हैं वो जमा हो जाए और सब मिलकर कत्ल करें। ये तदबीर इसलिए पसंद की कि अब्द मनाफ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ, अब्द मनाफ एक से बदला लेगा, दो से बदला लेगा, 5 कबीले से बदला ले सकता है। सारे सरदारान कुरैश और कबाइल अरब से वो बदला लेने की ताकत भी नहीं रखेगा। एक वजह इस तदबीर की। और दूसरी तदबीर की वजह ये कि कत्ल का गुनाह भी किसी एक पर नहीं आएगा। तो कातिल एक नहीं, एक कातिल हो तो उससे बदला ले। सारे सरदारान कुरैश और सारे जितने भी कबाइल के सरदार हैं हर एक से कैसे बदला लेगा? ये तजवीज पास की। इब्लिस लईन ने भी तालियां पीटी क्योंकि वो भी मजलिस में जमा था और फैसला हो चुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। कहां हो रहा है ये मशवरा? मक्के में। कहां हो रहा है? हरम में। कहां हो रहा है? बिल्कुल बैतुल्लाह के पास। अल्लाह बड़ा हलीम है, बड़ा बुर्दबार है। अपने उस नबी ये कत्ल का ये प्लानिंग बन रहा है जिसके कलमे में खुदा ने कोई नुक्ता नहीं रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं आने दिए। उस पाक जात के कत्ल की साजिशें रची जा रही है। अल्लाह ने जिब्रील भेजा, वईद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू लियुथबितूक। अल्लाह कुरान में फरमाता वईद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू, वो वक्त याद करने के काबिल है, वो टाइम याद करो। कुरान में जहां ईद आता है ईद, इसका तर्जमा करते हैं उद्कुर ज़ालिकल वक्त लिअन्नल वक्त काबिल अन युज़कर। वो टाइम जरा याद करो, इसलिए कि वो टाइम याद करने जैसा है। ये तर्जमा ईद का हुआ। अलिफ और जाल, हमजा और जाल खाली दो हर्फ हैं, और इसका तर्जमा अरबी में किया उज़कुर ज़ालिकल वक्त लिअन्नल वक्त काबिल अन युज़कर। ये अरबी की जामियत है। इसके दो हर्फों का तर्जमा इतना लंबा हुआ। वो टाइम याद करो, इसलिए कि वो टाइम याद करने जैसा है। कौन सा? इद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू, जबकि मक्का के मुशरिक लोग साजिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। वईद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू लियुथबितूक, जो मैंने पहला मशवरा जिक्र किया था, कुरान ने पहले नंबर में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इनको लोहे की जंजीरों में यानी सांकड़ों में बांध करके और बंद करके कमरे में डाल दो। आपको लोहे की सांकड़ों में जकड़ने का एक मशवरा आया था, इसको कुरान ने पहले नंबर में पेश किया। वईद यमकुरु बिकल्लदीन कफरू लियुथबितूक औ लियुखरिजूक। दूसरा मशवरा यह था कि जिला वतन कर दो, मक्के से निकाल दो। हर शरीफ, हर खुशतबान, हर इंसाफ पसंद, हर अच्छे आदमी के साथ ये मामला हुआ। मा मिनल अंबियाई मिन नबीय्यिन इज़ा कद्दबहु कौमुहु, कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसकी कौम ने पैगंबर को न झुटलाया हो और पैगंबर के झुटलाने पर पैगंबर को हिजरत न करनी पड़ी। तमाम अंबिया के साथ ये सिलसिला रहा। अब तीसरी बात, कत्ल कर दो, जो अबू जहल का मशवरा था। कुरान उतरा, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बताया वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मक्का के मुशरिकीन, सारे सरदारान कुरैश, कबाइल के बड़े बड़े चौधरी, ये बैठ करके प्लानिंग रची ली और अल्लाह इनकी प्लानिंगों का जवाब तैयार कर रहा था। तर्जमा ये होता है वयमकुरून, ये लोग साजिशें करते थे, ये लोग प्लानिंग ढूंढ रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह साजिश कर रहा था। ये तर्जमा नहीं, अल्लाह उनकी साजिश का प्लान का जवाब दे रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान तो मखलूक है, अल्लाह खालिक है। खालिक का प्लान चलता है, मखलूक का प्लान चला नहीं करता। अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है और अल्लाह से बेहतर तदबीर किसी की नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे, हजरत अली पास में मौजूद थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया, हिजरत का हुक्म आ गया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफ़रू थानिय इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आका की हिजरत के सफर के दो मरहले हैं। एक 5 मील के फासले पर आकर के सफर पूरा होता है और दूसरा मक्के से 5 मील के फासले के सफर का आगाज होकर मदीने पर पूरा होता है। यानी अपने घर से गारे सौर तक का एक सफर और गारे सौर से मदीने तक का दूसरा सफर इसी महीने में हुआ। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह। ए मक्का के मुशरिकों, अगर तुम्हें मोहम्मद और रसूलुल्लाह की मदद नहीं करनी है, न करो न करो, अल्लाह तो मदद कर चुका। फक़द नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफ़रू, जबकि काफिरों ने मक्के से मोहम्मद और रसूलुल्लाह को निकाला। इखराज का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया। आका को मक्के से निकाला। आका घर में अली मौजूद, आका ने
हजरत अली को मक्का के मुशरिकों की अमानतें, लिस्टें तैयार थी और इन लिस्टों पर इनके नाम लिख दिए। ये इस मुशरिक की अमानत, ये इस काफिर की अमानत, ये इस मुशरिक की अमानत। अली देखो, आपको दो काम करने हैं, मैं यहां से सफर करूंगा, ये नाम बनाम मक्का के मुशरिकों की अमानतें इनके हवाले करनी है सुबह में, और रात भर मेरी सबसे चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाना है। दो काम करने के थे, रात भर सबसे चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सोना है, और सुबह में ये अमानतें नाम बनाम मक्का के मुशरिकों के हवाले करना। अभी आपने देखा वो कट्टर दुश्मन थे, आपके कत्ल की प्लानिंग काबे में बना रहे हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास अमानत की हिफाजत तो वहां नहीं होगी। कुछ बात समझ में आई? इतना कट्टर हरीफ, लेकिन अपनी कीमती अमानतें अमीन और सादिक के पास जमा कराते थे, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हक की अमानत अदा कर दिया। मक्का से मुझे निकाला जा रहा है, आबाई वतन से मैं बाहर किया जा रहा हूं, अल्लाह का घर छुड़वाया जा रहा है। आदमी क्या अमानत की पासदारी करता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने कट्टर हरीफ वो अमानतें आका को जमा कराते थे, और आका ने अली से कहा इनकी अमानतें इनके हवाले करके फिर तुझे मदीने आना है मेरे पास। अब बाहर आका के घर का मुहासरा हो गया, आका के घर को घेर लिया। सीरत हलबिया, यह सीरत की किताब है, 8 जिल्दों पर है। इसमें लिखा है, वहुम मिअतु रजुलिन मिन सनादीदी कुरैश, 100 सरदाना ने कुरैश आका के घर के बाहर, वही घर जो अल मक्तबतुल आम्मा के नाम से आज भी मौजूद है, सफेद मकान आज भी मौजूद है। वो इतना बड़ा नहीं है जितना ये हम देख रहे हैं, छोटा सा कमरा एक अंदर था, अल मक्तबतुल आम्मा वाली इमारत, इसमें एक छोटा कमरा, बाहर 100 सरदानानी कुरैश और नंगी तलवारें फिजाओं में लहरा रहे हैं और बोल रहे हैं, आज मोहम्मद की नबूवत का पता चल जाएगा। ठट्ठे उड़ा रहे हैं, आज मोहम्मद के अल्लाह को देख लिया जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये ठट्ठे उड़ा रहे थे। जाहिर बात है, एक छोटे से कमरे में 2 आदमी हो, बेसरो सामानी में हो और कशमकश के आलम में हो, और बाहर 100 रंगी तलवार लेकर के काफिर का झमघटा हो, और वो भी सरदाराने कुरैश और बड़े बड़े दौलत, बड़े बड़े इनके जो है ओहदेदार हो, एक आदमी क्या कर सकता है? अब उस मर्द मुजाहिद की हिम्मत भी क्या हो सकती है? इधर पैगंबर अली को बिस्तर पर बिठाकर नाम बनाम अमानतें हवाले कर रहा है, और बाहर वो फिदाओं में तलवारें लहरा करके आका के कत्ल के सिलसिले के अंदर एकदम खुश और जोश और खरोश में आकर के कहते हैं, आज उसकी नबूवत का पता चल जाएगा, आज उसके अल्लाह का भी हाल मालूम हो जाएगा कि कौन अल्लाह उसको बचाता है। उन्होंने बाहर धमाल कर ली जो करनी थी, बहुत इत्मीनान के साथ घर में अमानतें तकसीम हो रही, हवाले कर देने की इनको इनको इनको। अब पैगंबर बाहर निकले तो कैसे निकले? अल्लाह चाहता तो घर की छत हटा देता, जैसे मेराज में हुआ था, बालक कदे में आराम कर रहे थे, घर की छत खुली, जिब्रील उतर गया। यहां भी इससे बड़ा करिश्मा खुदा जाहिर कर सकता था, और कोई मुश्किल नहीं था, यह हो सकता था। पैगंबर से अल्लाह ने फरमाया, आपको एक काम करना है, एक मुट्ठी भर मट्टी उठा लेनी है और शाहतिल वजूह पढ़कर के फूंक मारनी है। कमरे के दरवाजे तो बंद हैं, बाहर लोग हैं और वो सो हैं। आदमी फूंक मारे तो सामने की तरफ, इधर फूंक मारे तो बाई तरफ,
इधर फूंक मारे तो दाईं तरफ धूल उड़े, चारों तरफ कैसे उड़ेगी? लेकिन तदबीर कौन बताता है? वो अल्लाह, जिसके कब्जे कुदरत में सल्तनत है, वो चारों सिमतों का मालिक है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से फरमाया, साइंस नहीं दौड़ाई, सामने भूख जाएगी तो जमनी वालों का क्या होगा, ने डाबी वालों का क्या होगा, तो हुक्म की पाबंदी करने की, ये कर लो तो कर लेने का। आपने मुट्ठी भर मट्टी उठाई, शाहतिल वजूह कहकर के यूं फूंक मारी, बाहर जितनी भी सनादीद कुरैश के 100 सरदार फिराओं में नंगी तलवारें लहरा रहे थे, ये मुट्ठी भर मट्टी उनकी आंखों में गई हर एक की, और वह आंख मसलते रह गए। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा वलियुबलियुल मुमिनीन मिनहु बलाअन हसना। ऐ पैगंबर, आपका काम खाली मुट्ठी भर मट्टी के अंदर फूंक मारना है और इन काफिरों में से हर एक की आंख में पहुंचाना तेरे अल्लाह का काम है। ये ऐसा ही हुआ जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, अलैकल अज़ान व अलैनल बलाग। इब्राहिम बैतुल्लाह तामीर हो चुका, अब लोगों में हज का ऐलान कर दे। तो इब्राहिम ने उस मौके पर कहा था, मैं अब लोगों सऊती, ए बारी ताला मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, कुर्बान जाए मोहम्मद और रसूलुल्लाह। नबी ने यूं नहीं कहा कि दाएं का क्या होगा, बाएं का क्या होगा, सामने का क्या होगा। ये फर्क है इब्राहिम खलीलुल्लाह और मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ये बुनियादी फर्क है। वो भी अल्लाह का खलील है, 5 इम्तिहानात में कामयाब हुआ है, जिसकी पुष्ट में बनु इसराइल के 6000 पैगंबर और बनु इस्माइल का एक मोहम्मद और रसूलुल्लाह छुपाया हुआ है। लेकिन वहां तो पूछता नहीं इब्राहिम, मां ये लोगों सऊती, आवाज कैसे पहुंचेगी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने नहीं पूछा। ये फर्क होता है हबीब और खलील में। खैर इसमें बहुत जानियत है अरबी में। ये फर्क है खलील और हबीब का, ये फर्क है इब्राहिम और मोहम्मद और रसूलुल्लाह का। आका ने मुट्ठी पर मट्टी उठाई, हर एक की आंख में पहुंची, ये आंख मलते ही रह गए और मोहम्मद और रसूलुल्लाह इंतहाई इत्मीनान के साथ वजअलना लहुम मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कुरान में सूरह यासीन गवाह है, वजअलना लहुम मिन बैनिहिम सद्दा। पैगंबर के आगे भी खुदावंद कुद्दूस ने दीवार बना दी, दाएं भी और बाएं भी, कि कोई मक्का का मुशरिक आका तक पहुंच न सके। इसीलिए उलमाए तफसीर ने इस आयत के ज़ेल में लिखा कि अगर दुश्मन मुहासरा कर ले या दुश्मन ताक़ुब करे किसी पर और उस मौके पर अल्लाह की मदद चाहनी, कोई घेरे में आ गए, घेरे में, और वहां से सलामत निकलना है, सूरह यासीन की ये आयत पढ़ो, वजअलना लहुम मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। बस आका ये आयत जुबान पर थी, किसी काफिर की निगाह आका पर नहीं पड़ी। वो अपने ही आंखों में वो मिर्ची की पाउडर की तरह जो आंख में तकलीफ होती है, उससे भी तेज तकलीफ मालिक की तकदीर ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह की मट्टी में तासीर पैदा कर दी हाथ की, और शाहतिल वजूह कहा तो आंख ही मुतासिर नहीं हुई, हर काफिर का चेहरा काला हो गया। शाहतिल वजूह, जितने भी थे सबके चेहरे काले हो गए और आंखें मलते गए, और आका इत्मीनान के साथ निकल गए। कहां गए? सिद्दीक़ अकबर के घर गए। कौन सिद्दीक़? जिसका मंशा और मर्जी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम थी। सिद्दीक़ अकबर के फदाइल बेशुमार। गए तो सिद्दीक़ के घर गए और कहा मुझे हिजरत की इजाजत हुई। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अस्सहबतु बिअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या सफर में मुझे साथ रहने की इजाजत है? कुर्बान जाए सिद्दीक़ की अदाओं पर। अस्सहबतु बिअबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ सफर में रहूंगा। आका ने फरमाया हाँ तेरे लिए भी इजाजत है। जब अबू बकर सिद्दीक़ के घर से अब ये बातें हो रही थी, अबू बकर के बूढ़े माँ बाप थे, एक बेटी थी, अल्लाह के आसरे और भरोसे पर इनको छोड़ने की बात यहां से निकलनी थी, लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर के भी सदाकत पर
इनके माँ बाप ने नहीं पूछा कि क्या और क्यों और कैसे, और बेटी ने भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं और क्या मसला है। वो बेटी थी अस्मा ज़ातुन निताक़ैन। जब सफर की बातें चल रही थी, अस्मा ने जल्दी जल्दी घर में थोड़ा सा नाश्ता तैयार कर दिया और थैली में बांध दिया, लेकिन बांधने के लिए डोरी घर में नहीं थी। वो अबू बकर का घर था और बेटी अस्मा अबू बकर की थी। अस्मा ने फौरन अपने सर के दुपट्टे की चीरी निकाली और चीरी निकाल करके नाश्ते की थैली का मुंह बांध करके बाप के हवाले कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अस्मा ज़ातुन निताक़ैन, अबू बकर की बेटी अस्मा, तूने एक दुपट्टे की कुर्बानी दी, अल्लाह तुझे जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ 2 दुपट्टे दिलवाएगा। तो अस्मा की जन्नत तय हो गई, इसलिए कि जब उस वक्त तक जन्नत में दुपट्टा मिलेगा जब जन्नत में जाएगी। ये है सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, यानी अस्मा, आयशा नहीं, ये अस्मा के हालात हैं। तशरीफ ले गए आका, अबू बकर साथ में। सफर का पहला मरहला पैदल तय हो रहा है, 4 से 5 मील। कहां गए? गारे शोर गए। बहुत दुश्वार गुजार घाटी थी, चढ़ान बहुत मुश्किल की थी, इसके नोकीले पत्थर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक बहुत नर्म नाजुक थे, और नर्म नाजुक पैर जब नोकीले पत्थर पर पड़े तो पैर मुबारक खून खून हो गए। बहुत दुश्वार गुदार घाटी, गारे शोर की चढ़ाई कोई मामूली नहीं, इंतहाई नोकीले पत्थर। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी शहर में 13 साल जिनके मज़ालिम बर्दाश्त किए हो, वो नबी वतन छोड़ने पर मजबूर होता है और यूं मक्का की तरफ देख करके मुखातब होता है, वल्लाही कसम खुदा ताला की, तू मुझे बहुत प्यारा है, लवला उखरिजू, अगर मक्का वाले मुझे न निकालते तो मैं कभी भी न निकलता। वल्लाही इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाह इलैहि, खुदा की कसम ऐ मक्का, सारी खैर खुदा ने तुझ में जमा की है, तू सबसे अच्छा है, सारी मोहब्बत खुदा ने तुझ में जमा की है, तो सबसे मेरा प्यारा है। लौला उखरिजतु मा खरजतु मिन, अगर मक्का वाले निकालते नहीं तो मैं कभी भी ना निकलता। जिसकी जुबान से ये कलिमात हो और वो यूं अल्लाह के घर को बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा हो, और गारे शोर की चढ़ाई बहुत मुश्किल। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये सहाबा की आदत थी, फिदाइयत में अपने माँ बाप फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। देखो चढ़ान बहुत ऊंचा है, नोकीले पत्थर आपके नर्म मुलायम कदम को जख्मी कर रहे हैं, मुझसे ये देखा नहीं जाता। अब सवार हो जाए। कौन सी सवारी थी? मेहराज में तो बुराक आया था और वो घर से ले गया था, लेकिन यहां कौन सी सवारी है? वो सवारी एक मौका था जब पैगंबर ने सफर किए हैं तो कभी ऊंट के कांधे पर, कभी खच्चर के कांधे पर, कभी हलीमा सादिया के कांधे पर, और जब पैगंबर हिजरत का सफर कर रहा है अल्लाह की निस्बत पर, तब सफर के अंदर सवारी कौन सी? अबू बकर बैठ गए आका को पीठ पर या आका को कंधे पर, अलाका ही अबू बकर की पीठ पर या अबू बकर के कंधे पर। अबू बकर ने आका को उठा लिया और आका को उठा करके गार तक पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू बकर है। आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अपनी पीठ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सवार किया या अपने कंधे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सवार किया और गार के दहाने पर पहुंच गए। लेकिन गार तो बहुत उज्जड़ था, बाहर भी हालात ऐसे, अंदर के हालात भी ऐसे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अंदर जाकर सफाई कर लेता हूं। अगर मैं कत्ल हो गया तो एक उम्मती कत्ल होगा, और अगर खुदा न खास्ता आपको तकलीफ होगी तो पूरी उम्मत हलाक हो जाएगी। यह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, खुदा न खास्ता अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची, चूंकि बैरान गार है
जहां सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर सब रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अगर मैं कत्ल हो गया तो एक उम्मती मारा जाऊंगा, और अगर आप शहीद हो गए गार की किसी तकलीफ दे मखलूक से तो फिर पूरी उम्मत हलाक हो जाएगी। आपको बाहर थे रहे हो, पूरी गार साफ की, जितने भी सुराख थे होल सब बंद किए। जितना था अबू बकर के पास एक चादर थी, वो चादर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फाड़ फाड़ करके अपनी चादर फाड़ फाड़ करके गार के अंदर सुराख बंद की, लेकिन दो होल बाकी रह गए। इस पर पैर का अंगूठा या एडी रख दी और आका से फरमाया, उदखुल, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दाखिल हो जाइए। आका बहुत थके हुए थे, इंतहाई गम और सदमे के शिकार थे, और जो हालात पैगंबर पर थे वो पैगंबर ही जानता है। जिस कौम के लिए सब कुछ लुटाया वो कौम आज निकाल रही है। 53 साल की उम्र है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। सहाबा की शहादतें हुई, सुमैया को चीरा गया, जन्नीरा को फाड़ा गया, बिलाल मारा गया, सोहेब मारा गया, सलमान मारा गया, अम्मार आग में डाल दिया गया। पैगंबर पर क्या बीती होगी? वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब का नबी। वो कहता है, इंसानों, अपनी औलाद के बाबत बेटियों के अंदर गैरत पैदा करो, अपनी बेटियों के बाबत गैरत पैदा करो। बहुत वक्त नाजुक आ चुका है, जिस बाप के आंखों से मोहब्बत में बेटी पली हो वो किसी जालिम के साथ निकल कर जा रही है। गैरत तो पैदा करो अपने दिल में। अभी भी मुझे किसी ने कहा, क्या एमडी डॉक्टर का बयान दो। कितने बयान दे? अंदर गैरत पैदा होगी तो सब कुछ होगा। पागल तो कौम के बच्चे हो रहे हैं, हिंदुओं से इलाज करके ईमान का सौदा तो कर रहे हैं। किस किस का बयान करें? अगली जुमा में तफसील से कहा था, भाई केसोद के अक्सर गढ़ मत जाओ तो वधारे जाएंगे, ऐलान करेंगे तो देखेंगे आई था शू आपने जोए बोला अलियाजुबिल्लाह। कहते हैं काफिर से इलाज मत कराओ, अगर मंत्र पढ़ लिया कुफरिया तो काफिर बन जाओगे, बीवी निकाह से निकल जाएगी, ईमान की तजदीद करनी पड़ेगी। हर घूम फिरने के मकामात पर हम बेटियों से खुसूसन मुखातब होते हैं, ए प्यारी बेटी, तुझे तेरे माँ का हमल याद नहीं? ओ हुआ की बेटी, क्या तुझे तेरी माँ का दर्द से है याद नहीं? वो हुआ की बेटी, क्या तेरी माँ की छातियों का गर्म दूध सर्दियों में और गर्मियों में ठंडा दूध तुझे याद नहीं? तो किस मुंह से सफाकी कर रही है? तो किस जालिम और किस आयरे गैरे के साथ अपना घर छोड़ करके जा रही है, जबकि तेरी किस्मत तेरे शहर में तेरे सामने है। मोबाइल औरतों से बंद करो, कुछ भी हो जाए खत्म कर दो। क्या जरूरत है बड़े मोबाइल की बेटी को? हमने अपनी तालीम गाहों में भी आने से मना कर दिया बेटियों को, बिल्कुल नहीं, एंट्री ही नहीं। क्या जरूरत है इसको? कोई जरूरत नहीं है। याद करो इन मुजाहिदीन इस्लाम को, 20 साल बेसरो सामानी के आलम में रहकर खुदा ने क्या सिक्का इनका रोशन कर दिया। मैंने कहा कितने बयानत करे भाई, हमारे दूसरे अनामिन भी होते हैं, हमें कौम से और भी मुखातब होना है। अभी मुल्क इंतहाई खतरनाक हालात का शिकार है। दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में डाल दिया गया है। जिस आदमी की जिंदगी में सियासत में कोई नाम नहीं, जिस आदमी के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा, वो अल्लाह के कलमे की तरफ मुसलमान और गैर मुस्लिमों को दावत दे करके अमन की राहें उस्तवार करता है, बेकसूर निर्दोष जेल में डाल दिया गया। ये हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा में से दाई इस्लाम, हालात बहुत नाजुक है। सीधा सीधा शख्सियात को मुंतखब करके हीरे और बहाने से हालात का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए का इस्तेकामत अब टाइम आया है हिंदुस्तान में, वो 2022 सामने है या 2023 सामने है। मेरे भाइयों, बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ कहते हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, कानून के तहत जिंदगी गुजारो, वाहियात और फुजुलियात से परहेज करो, बेटा मोबाइल की टीक से बचो। कहीं कोई जालिम दरिंदा उठा करके तुझे तेरे घर से ले गया, तेरे माँ बाप का तू जाएगा, तेरे खानदान का तू जाएगा, और तेरे जिस्म में क्या पेट्रोल के इंजेक्शन भरने की ताकत तू रखता है?
क्या तो सलाखों पर चढ़ाए यानी कि हिम्मत रखता है? देश बहुत खतरनाक, इंतहाई खतरनाक हालात से दो चार है। खुसूसन इस वक्त काम करने वाले फाआल तबके पर वो मसमूम नजर के जरिए से इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। नौजवाना ने कौम मिल्लत, जरूरत है, हमारी इस्तिकामत के इम्तिहान हो रहे हैं, हमारे सब्र के इम्तिहान हो रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द वो पैगंबर की बशारत पूरी होगी। ला यबका अला ज़ाहिरिल अर्दि बैत वदरिन वला मदखर वला मदरिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल इस्लाम बिकलिमतिल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिज़िल्लि ज़लीलिन। जितना ही दबाया गया मोहम्मद के कलमे को, भले हालात आए, लेकिन वही कलमा गालिब रहा पूरी कायनात के अंदर। हिंदुस्तान में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर कच्चे पक्के मकान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल होकर ही रहेगा। लेकिन कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बगैर कुर्बानी के कभी निखार पैदा नहीं होता। कहां इनको मालूम था, जो खलबतों में रहने वाले, जो कौम का दर्द रखने वाले, जो इंतहाई अमन आस्ती के पैकर, जो किसी से सख्त सुस्त लहजे में बात करना नहीं जानते, उन्हें क्या मालूम होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जेल की सलाखों के अंदर मुझे डाला जाएगा। और वो जेल की सलाखों में यूं कह रहे हैं कि हजरत यूसुफ की सुन्नत जिंदा हो रही है। तफसीरों में और हलकों में पढ़ते थे और पढ़ाते थे, लेकिन जेल में जाने के बाद यूसुफ याद आ गया, जिनको एक जमाने के अंदर निर्दोष जेल में डाला गया था, और अल्लाह ने यूसुफ से वो काम लिया जो आज तक कुरान हिकायत करता है। हमारे पास दलाइल है, हमारे पास इल्म है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है, इसको तस्लीम करें और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जब सारे गार साफ करके दो होल में अपने पैर का अंगूठा रख दिया, उदखुल या सैयदी, आप दाखिल हो जाए, अल्लाह के नबी थके हुए, अबू बकर की गोद में आका ने सर रख दिया, कुर्बान जाए, वो क्या प्यारा नजारा होगा। आका बहुत थके हुए थे, 5 मील का पैदल सफर, इंतहाई संगलाक पहाड़ी और पत्थर, आंख लग गई। वो होल से सांप ने अबू बकर को डस लिए। आका की ज़ियारत के लिए आया था, इस वाक़ये की तफसील आइंदा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या महान इंसान थे, सांप ने डस लिया है, पूरा जहर बदन में सिरायत कर चुका और आंख पर गालिब आ गया, और आंख पर जब गालिब आ गया तो गर्म गर्म आंसू अबू बकर की आंख से बेइख्तियार निकल पड़े। या अबू बकर के रोने पर नहीं निकले थे, वो जहर जिस्म में ऐसा भारी सिरायत कर गया कि जिसके नतीजे में, जैसे आप किसी मरहूम को देखें, इंतकाल हुआ हो, ताजा खाना पीना खाया हो, तो जब रूह निकलती है तो अंदर से पानी फूटता है बाहर, तो बेइख्तियार वो जहर आंखों से निकल करके आका गोद में तशरीफ रखते थे अबू बकर की, आका के रुखसार मुबारक पर जब वो आंसू गए तो आका नींद से बेदार हो गए और फरमाया, मा लका या अबा बकर, मा लका या अबा बकर, ए मेरे अबू बकर तुझे हो क्या गया। खैर, यहां से इंशाअल्लाह आइंदा जुमा से कलाम होगा। सब्र से काम लें, इस्तिकामत से काम लें, इसी के साथ साथ मुल्क की बदली हुई सियासत, सूबे की और मुल्क के बदलते हुए हालात में अपने ईमान, अपने अमाल, अपने शाइर इस्लाम, इसकी हिफाजत के लिए पूरी इत्तिहादी और मिल्ली और मरकजी ताकतों के साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर के इन हीलों का, इन साजिशों का और इन तदाबीर का मुस्बत और बेहतर अंदाज के अंदर जवाब भी जरूरी है, और जिसके लिए मुल्क के अंदर माहिरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें दुआ भी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला निर्दोष बेकसूर जेल की सलाखों में हजारों सड़ रहे हैं, इनके लिए खुदावंद कुद्दूस की तरफ से अब गैब से वो वक्त करीब है कि अल्लाह ताला जुल्म को खत्म करके इंसाफ का सूरज जल्द चमका देंगे इंशाअल्लाह। ये लिल्लाह
चंदा जो बैतुल माल का होता है इसमें ज्यादा ताउन फरमाएं, कोशिश करें। इससे मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह वगैरह दी जाती है जिसमें घट पड़ती है, इसलिए इसमें कोशिश करें। बाड़मेर राजस्थान के मदरसे से एक मौलाना तशरीफ लाए हैं, ज़कात-उल्लाह सदका खैरात के जरिए से इनका भी ताउन करते जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या दल कुव्वतिल मतीन। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशूअत व तक़वा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आप ही अल्लाह है, आप खालिक और मालिक हैं, आपने सारी मखलूक को पैदा किया है। अल्लाह उतार चढ़ाव और हालात का खींचाव और अल्लाह सुकून सब आप ही की तरफ से है। हमारा ईमान है भली और बुरी तकदीर की मालिक जात आप ही की है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई कुर्बानियां ली, अल्लाह दीन दुनिया में आम हुआ। इस्लाम हमेशा कुर्बानियों में रहा है और फलता फूलता फैलता है। अल्लाह इन मुकद्दस लोगों से आप कुर्बानी ले रहे हैं, जो मसनद के लोग हैं, जो सीधी सादी तबीयत के लोग हैं। अल्लाह जो तेरे कलमे की दावत की बुनियाद पर जेलों की सलाखों में बंद कर दिए गए, यकीनन आप ही रब्बुल आलमीन हैं। आपके फैसले के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसमें क्या हिकमतें हैं वो तो ही बेहतर जानता है। लेकिन ऐसे ऐसे जय्यदुल इस्तेदाद उलमा फिर से जेलों के हवाले किए जा रहे हैं। एक वक्त वो था जब अंग्रेज ने इस मुल्क को लूटा, यही लोग मैदान में आए थे और वो जेलों की सलाखों में बंद हुए थे। अल्लाह फिर आपने इस मुल्क को आज़ाद किया था। न मालूम ये मुल्क कौन सी गुलामी की जंजीर में फिर से जकड़ रहा है, जिसके नतीजे में आज़ादी की जरूरत है, और वह आज़ादी के लिए तू इन नुफूसे कुदसिया को से काम ले रहा है। तेरी तकदीर को तू ही बेहतर जानता है। हमें इसमें तकलीफ मुसीबत नजर आ रही है, हालात नागवार नाखुशगवार नजर आ रहे हैं, लेकिन तेरा कोई न कोई लतीफ हीला है जिस पर तू काम कर रहा है, और तेरी तदबीर को तू ही बेहतर जानता है, और तेरी तदबीर से बेहतर किसी की तदबीर नहीं है। रब्बा वही मरकज निजामुद्दीन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला और कोरोना 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 करके तेरी कोई न कोई हिकमत और मसलिहत थी। ऐ अल्लाह हमें तो ये समझ में नहीं आता है, अगर ये ताउन है तो इंसान कैसे ऐलान करता है कि तीसरी लहर का खतरा टल गया, और अगर ये ताउन नहीं तो अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अल्लाह जालिमों के हाथ लगाम जाने के बजाय परवरदिगार तो हमारी मोहब्बत से इस्लाह फरमा दे। यकीनन हम में कीमारबाजी है, यकीनन हमारे अंदर शराब खाने आम हुए हैं, यकीनन हमारी बेटियां आजाद हुई है, यकीनन हमारे बेटे फाजिर बने हैं। मौला कौन सा दुखड़ा है जो तेरे दरबार में पेश करे। आज जुमे का दिन है, जहां से दर्दों पर बरहम मिलता है। आज जुमे का दिन है, जिस जुमे के दिन में मांगा हुआ तो वापस नहीं करता है। एक आजिज दलील बंदा तेरे सामने दुखड़े बयान कर रहा है, और दुख दर्द के दूर करने वाले अल्लाह, अगर समाज के जवानों को भेड़िए न बना, जो किसी की बेटी की इज्जत पर भेड़िया बन करके कूद पड़े, हमारी बेटियों को भेड़ियों के शिकार से तो बचा ले। हमें तो ऐरे गहरे की बेटी भी अपनी ही बेटी लगती है। ऐ मेरे परवरदिगार, वो मक्के की धरती जहां बाप बेटी को जमीन में जिंदा दफनावे, वो मट्टी की धरती, मक्के की धरती जहां बच्चा पैदा हो तो पहला कतरा शराब का टपकाया जावे, यहाँ तहनीक शराब से की जाए। वो मक्का की वादी जहां कीमारबाजी आम थी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अब आशी का गहवारा बना दिया, और हमेशा हमेश के लिए इन जराइम से मक्का को पाक कर दिया। ऐ अल्लाह, हम किसका रोना रोए, जबकि मौजूदा सऊदीया गवर्नमेंट ने
मदीनतुर रसूल के अंदर 10 थिएटर बनाने का फैसला कर दिया। मेरे परवरदिगार, तू तेरा कहर उतार रहा है तेरी जमीन पर। ऐ अल्लाह, अब बहुत ही कयामत करीब है, बहुत ही करीब कयामत आ चुकी है। तू कायनात को तोड़ फोड़ करने वाला है। अल्लाह, हमारी पासदारी फरमा दे, ईमान की, इस्लाम की हिफाजत फरमा ले, जमात हक्का की तीनों मेहनतों में रफाकत पैदा फरमा दे। अल्लाह, फरीक बन करके जीने से बचा ले। मुस्लिम तंजीलों में और जमातों में इत्तेहाद और इत्तिफाक की सफ़े आरास्ता पैरास्ता फरमा, जो बेकसूर जेलों की सलाखों की नजर हो गए। ऐ अल्लाह, जल्द अज जल्द गेब से ऐ अल्लाह बाइज्जत, ऐ अल्लाह छुटकारे की शक्ल पैदा फरमा दे, बाइज्जत रिहाई की शक्ल पैदा फरमा दे। वो तू ही अल्लाह है जो यूसुफ को जेल खाने में डलवा कर बाइज्जत रिहा करवा कर, ऐ अल्लाह जेल से तू मिस्र की सल्तनत का मालिक तू बनाता है। तो वही अल्लाह है जो यूसुफ को कनान के कुएं से निकलवाता है और जेल में डलवाता है, और तू वही अल्लाह है जो जेल से निकाल करके ए अल्लाह तख्त सल्तनत का मालिक बनाता है। तेरी कुदरत आज भी इन्हीं ताकतों के साथ उससे बढ़कर काम कर रही है। इस मुल्क को जुल्म से आजादी नसीब फरमा दे, बर्बरियत से आजादी नसीब फरमा दे, इस मुल्क की महंगाई को खत्म फरमा दे। जालिम हुक्मरानों के लिए तू ही काफी हो जा। रब्बा, न हमारे पास कोई तदबीर है, इसलिए कि हम बटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। अल्लाह, हमें कोई ताकत नहीं, दुआ तो हम जानते ही नहीं। अहल्लल मुश्किलात, सहाबा ने हर दुख दर्द दुआ से दूर किया था, वो हथियार हम इस्तेमाल ही नहीं करना जानते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें सब्र अता फरमा, दिन पर इस्तकामत नसीब फरमा, तुझसे लेने देने का मसला दुआ के जरिए से हल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगा हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन जिन शुरूर से पन्ना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, अरहमुर राहिमीन हजरत मौलाना को और जितने भी बेकसूर जेलों की सलाखों में बंद है, रहाई की गेब से फौरी जल्द अज जल्द बाइज्जत शक्ल पैदा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक।